इंपॉर्टेंट है कि उनका अध्यापकों के प्रति कितनी आस्था है, सीखने के प्रति कितने वो लालायित हैं, कितने वो उत्सुक हैं, इसकी आवश्यकता है। मेरा टीचर्स से निवेदन है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कि अपनी हेकड़ी ना झाड़ें क्लासेस में जाके। टीचर्स का क्या टेंडेंसी होती है, वो जाके ये प्रूव करने लगते हैं कि बच्चों से ज्यादा आता है हमें, वी नो बेटर देन द स्टूडेंट्स, और वहां सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अरे भाई, यू नो बेटर देन द स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई यू आर द टीचर। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप तो क्लास में जाइए, क्लास में जाके बच्चों को 10-15 मिनट उनकी प्रशंसा करिए। यार आप जैसे तो बच्चे मिले नहीं, पिछला बैच कितना बर्बाद था, बकवास था, आप तो बहुत अच्छे हो। एक्चुअल में टीचर क्या करता है, पिछला बैच था कितना अच्छा और कितना शायर था, और आप जैसे हो बिल्कुल सारा दिन मेरा दिमाग खाते हो। तो वहीं से शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सेशन की, तो ये जो मेरे जो उद्गार हैं, जो मेरे विचार हैं, ये इनमें से अगर 2-3% भी आपको ठीक लगे वही ग्रहणीय है आपके लिए, और जो 95-97% आपको लगे कि ये बकवास है, तो उस पर चर्चा ना करें, उसके बारे में बात ना करें, उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए ग्रहणीय नहीं है। जो मैंने कहा है, जो आपको आपके सामने समर्पित किया है, तो जो ग्रहणीय है वो ग्रहण कर लीजिए। विद दीज वर्ड्स आई थैंक वंस अगेन प्रोफेसर मोदी for actually inviting me for this function and for actually creating such an opportunity where we can actually interact with each other and have such eminent personalities like Professor Singh and Professor Kushwaha. And I am really delighted today to share desk with them. Thank you very much. Long live KN Modi Group of Foundations and all these institutes. Long live the students, the teachers, and all the top level academicians of UPTU. Thank you very much. Thank you very much, sir, for sharing your deep knowledge with us. Your session was really full of enthusiasm and valuable knowledge. We are really charmed by your sharp fluency. Thank you. पहले से लिखा हुआ था मैडम। We are really charmed by your fluency and your words of wisdom. It will be a great pleasure for us to listen to you again in our future events. Now may I kindly request our President, sir, to present the memento to Honorable Vice Chancellor as a token of gratitude. Now it is the time for the tea break, but before moving for a tea break, with the kind consent of the Honorable Vice Chancellor, we would like to have a short session of photo. So may we have, sir? Yes. You want to bring the faculty up and have a photo, or how you want to do it? They will come. Department wise. Very good. Give a big hand to directors and deans. मोदी जी पे फोकस करना, हमारा भी आ जाएगा। हमारे जो टेक्निकल टीचर्स हैं वो भी अच्छे प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं। In India as well as in abroad by traveling a lot of countries. Once Dr. Pandey has just 5 to 7 minutes I used to take to synchronize. Synchronization is very important because I am going to spend approximately half a day here. So at least output should be some beneficial for you as well as for me also. So just 5 or 7 minutes, just synchronization. After that, I will discuss some of very interesting things. So the first important thing which I am trying to mention that once Dr. Pandey has mentioned that we are organizing a conference on the emerging trends in computer science and technology. Then I was thinking, and I am thinking also, there is also a need to discuss here up to what need we have to provide the computer and what other amenities related to the computer. In India nowadays, in all over the world nowadays, it is a big challenge. Whatever be the stress, whatever be the you can say the stress or the depression or whatever it is.
80% due to the computers and its gadgets. So I am sharing that because yesterday I was in meeting with MHRD and we are thinking that up to what need we have to go for the emerging. Growing the technology is very good, but up to what extent we have to use, that is a very important to understand. So, and Dr. Sangal was saying something, just for 2 minutes for that. Yes, just I have mentioned my reservations also. Everybody is talking 75% is attendance, this, that, whatever it is. I am just going to give you some instance. 6-7 साल पहले अगर आप 8 साल पहले या 10 साल पहले when you were maybe in class 4 था फिर बगल का कोई आपकी मम्मी कहती देखो उनका लड़का जो वो तब MNIT मोतीलाल में आ गया. मोतीलाल was the conducting of the combined entrance exam REC उसमें आ गया. वो इंजीनियरिंग कोई पूछता क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, अरे इंजीनियरिंग कर रहा है. तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, BA कर रहा है, BSc कर रहा है. आपकी क्या सिचुएशन हो गई? yes. हेलो, आपकी क्या सिचुएशन हो गई? अब कोई पूछता है आपका लड़का क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है. दैट फीलिंग यू हैव टू चेंज. ये कोई फील नहीं कर पा रहा है. इतना भी घी खा लीजिए, रख लीजिए, पेट में नहीं गया तो हमारे लिए सब बेकार है. So that feeling only the students can change, and it is my personal request to the teachers as well. I was mentioning in your with the government board of all the chairman, whatever it is. That another very important thing, the class contact. Nowadays in internet a lot of information is available, but who will tell you it is correct or not correct? It is very difficult to say that whatever be there, all these things are correct or relevant or whatever it is. Just killing a lot of time to search something, not going to the library where you can get a book and you can see all the things. And it is going to harm in the future to you as well as for the country. I was discussing, because I have traveled more than 25 countries, approximately 10 to 12 years I was in abroad, and every year I am moving and here and there. One thing is very important for a dear student and my dear teachers. The West world is very narrowly seeing that. West world देख रहा है कि इंडिया की जो main property है वो क्या है? Intellectual property. We don't have a food, we don't have a lot of money, कुछ नहीं है. But intellectual property we have. How to kill that property, that is the main motto of the West world. और धीरे धीरे उस पर कोशिश करते जा रहे हैं. सब कुछ दे दीजिए, स्टूडेंट से कुछ मत मांगिए, कुछ मत कहिए. हमारे यहाँ इंद्रियों पर विजय की बात की जाती है. इंद्रियों पर विजय जब आप एक अनुशासन में रह के काम करेंगे तभी आ सकती है, ऐसे कभी नहीं आ सकती. So that is a very important aspect which I want to share with that. And second important thing, now I will be coming for the topic. दो तरह की चीजें मेरे दिमाग में आई, मुझे क्या बोलना चाहिए. Then I thought that जो missing है वो बोलना है. The missing which I am seeing that सभी को लगता है पेपर पढ़ लिए रिसर्च हो गया, पेपर का डुप्लीकेट कर दिया रिसर्च हो गया. न्यू कमर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. बट हाउ टू गेट द न्यू आइडिया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको न्यू आइडिया, आपको लगेगा काम सैचुरेट हो रखा है, आपको सर इसमें कुछ बचा ही नहीं. बट हाउ टू गेट द न्यू आइडिया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो माई मेन फोकस इज हियर that a lot of things I will regarding the recent trends I will discuss, because discussing for the emerging trends in computer science maybe it will take more than 10 to 12 hours to discuss. Infinite things are going on because everybody is trying nowadays. Everybody wants that कि सभी चीजें कंप्यूटर से हो जाए. आप जो सोच रहे हो, अभी मैं था यूएस में, people are thinking एक चिप लगा दें, मेमोरी चिप इन द माइंड, और डिकोडिंग ही करनी है. यूरास ने कोड कर रखा है, इंक्रिप्शन इज डिस्क्रिप्शन इज ओनली रिक्वायर्ड. आपने किया, मेमोरी चिप निकाली, क्या सोचा है, अंदर निकल गया. सो द साइंस इज गोइंग, टेक्नोलॉजी इज गोइंग अप टू दैट एंड, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हाउ टू स्टार्ट ए वर्क without having any fund or without having anything. That is a very much required in India.
सभी लोग कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है, सबके पास लैपटॉप है, कहीं ना कहीं से कुछ डेटा है और सबके पास दिमाग है। कोई भी वंडर्स कर अगर करना चाहे। सभी लोग, हमने कहा अभी बाहर कि वाई पीपुल आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम आप ही के कॉलेज को IIT बनाते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ऐसी चीज़ें डेवलप करें कि आप ही IIT हो जाओ। भाई हम भी वहीं IIT से आए, पढ़ाते ऐसे बच्चे हमारे सामने बैठे रहते हैं, यहाँ बैठे हुए। तो इनको ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि IIT के बच्चे हैं या ये किसी और कॉलेज के बच्चे हैं या IIT के प्रोफेसर या किसी और कॉलेज के। आई हैव नेवर सीन लाइक दैट। All we have a capability, only we have to explore by ourselves. So I thought that इंडिया में काम करने के लिए, मैं भी 10 साल पहले इंडिया लौटा 2004 में। इंडिया में काम करने के लिए पहली चीज़, कभी किसी को ब्लेम मत करें, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। हम लोग BHU से पढ़े हुए हैं, मालवीय जी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सब लोग अच्छे अच्छे पढ़ के बाहर चले गए। कभी ब्लेम मत करिए, ये नहीं है, ये नहीं है, जो भी है, what the best we can do for that we have to do. Second important, इंडियन रिसर्च के लिए मैं लौटा तो इंडिया, मुझे भी US में जॉब मिल गई थी, मैं भी नहीं लौटता। जब मैं बाहर के लिए काम कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं इनके लिए काम क्यों करूं, पैसे की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, सोने के बिस्किट खाने नहीं है और एज के साथ खाना वैसे भी कम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इंडिया में जो रिसर्च की ज़रूरत है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू प्रोड्यूस, अभी जो बोल रहे थे कि फिलीपींस में जॉब ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, वहाँ लेबर कास्ट कम है, स्किल्ड लेबर है, देयरफॉर कंपनीज आर गोइंग फॉर दैट। आप ये हम जो भी बात करेंगे इंटेलेक्चुअल के बीच में, वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि हम कैसे इनोवेशन लाएं, हम कैसे थॉट करें, कैसा अपना प्रोडक्ट बनाएं, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई मेंशन दैट, पूरे वर्ल्ड वाइड मैं डिस्कस करता हूं और करता रहूंगा कि हाउ टू प्रोड्यूस ए लो कॉस्ट थिंग फॉर द इंडियन सोसाइटी और फॉर इंडियन पीपल। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास 1 करोड़ का फंड है। इन 99 आई वॉज इन US, उस समय मार्स पाथफाइंडर गया, मंगल पे एक पाथफाइंडर गया और इट वॉज नॉट सक्सेसफुल और खरबों रुपए उस पर खर्च हुए थे। आई वॉज आस्किंग कितना पैसा आपने ऐसे खर्च कर दिया, तो दे वर सेइंग दैट ओके मेरे पास पैसा है, हमने खर्च कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट सही होगा, बट वी डोंट हैव ए मनी सच टाइप कि हमारे पास हम खर्च करते रहें और खराब करते रहें। 2 things are very important which I want to share with this dais. First, कोई ब्लेम क्लेम का गेम नहीं। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आपका अपना अच्छा दिमाग है, ट्राई टू यूटिलाइज दैट वन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू थिंक, कोई भी रिसर्च का टॉपिक है, कुछ भी जिसमें भी आप काम कर रहे हो, ट्राई टू थिंक कि हाउ टू मेक इट ए कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम, हाउ टू डेवलप सम कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट मोटिव फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस। So I have taken, I am working in a large domain of the computer science as well as the electronics, but I have taken the special case of low resolution satellite images, application for hotspot monitoring. Once everybody has a mobile, once we are trying to buy a mobile, क्या देखते हैं? Just 2 minutes interaction with the student. I will not take more than 45 minutes. There are 2 ways to deliver a lecture. One is the Japanese way, another one is the European or US way. European and US way is that very pinpoint lecture, very narrow specific with a very selected gathering. Japanese style, throwing a lot of technical words. कि आप लिख लो, जब जरूरत हो तो खोज लेना, मेरी मेल ID है, कभी कांटेक्ट कर लेना and discuss it. I used to give this type of lecture Japanese way. A lot of technical words I will explore here, I will quote here. And if you are interested, you can note down. If you are thinking that I can, we have to read something or we have to do something, then you can note down and you can discover it. So, अगर आप कहें हमें मोबाइल खरीदना है, what would be the first answer? क्या होगा? कैसा मोबाइल? क्या होना चाहिए मोबाइल? Students, yes. At least स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें कि आवाज ना सुनाई दे। जस्ट जो कि और कुछ जस्ट 2 मिनट जस्ट, उसके बाद हम शुरू कर ले रहा हूँ। अगर मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आपकी क्या प्रायोरिटी होगी?
हाँ Yes, yes. Yes. वही एक दिक्कत सबसे बड़ी आ गई। मोबाइल का जो मेन काम है फोन करना और फोन सुनना, उसके फीचर पे किसी को ध्यान नहीं है। किसी को ये नहीं मालूम होगा कि ट्रांस रिसीवर का सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना होना चाहिए, जहाँ पे वो आपको हार्म न करे और जहाँ पे आपको क्लियर वॉइस है। आईपॉड, ए लॉट ऑफ डिवाइसेज आर देयर। अगर आपको गाना सुनना है तो आप दूसरी डिवाइस यूज करो, एक ही में क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो? कैमरा रखना है, दूसरा कैमरा रखो। लेकिन अब जो ट्रेंड आ गया है कि मोबाइल को छोड़ के बाकी वो सब काम करे, कम्युनिकेशन को छोड़ करके बाकी वो सब काम करे, इंटरनेट दिखा दे, फोटो खींच दे। आई एम जस्ट कमिंग फॉर द images. Once we are trying to buy a camera or any mobile, we are saying कितने मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल. What does it simply mean? It simply means that if we have a more, I don't know, अगर मैं किसी से पूछूं कि 12 मेगापिक्सल की फोटो देखा और 8 मेगापिक्सल की फोटो देखा, क्या डिफरेंस पाया? Anybody can explain? किसी ने तभी पास होगा, मेरे पास 8 मेगापिक्सल वाला है, मेरे पास 12 मेगापिक्सल वाला है। किसी ने कोई डिफरेंस बता सकता है? यस नहीं, ज़्यादा क्लियर आँख से नहीं दिखती। आप लोग कितने तक जूम करेंगे? नहीं, डिपेंड। हमारे कंप्यूटर की एक कैपेबिलिटी है कि एक स्क्रीन को देखना है। आपकी 14 इंच का लैपटॉप है या 18